We were studying about the trade imbalance and welfare effect of international trade imbalance. And in the given situation, we studied about the welfare effect that domestic spending. If domestic spending is decreasing or is less due to the trade deficit, we say that trade deficit has a bad impact on welfare. To understand the effect of trade imbalance or trade deficit and surplus, we studied different scenarios to make it easy, to make it clear. Our first case was most simple case that no trade imbalance and no GNP growth between periods. Or our assumption is that we are studying about two periods, period 1 and period 2, maybe generation 1, generation 2, this year or next year. And we compare the situation if there is a trade deficit in first period or if there is no trade deficit in any period and no GNP growth and domestic spending is equal to GNP, it is the most simple base case to understand the next scenarios. And case 2 was that if a country is running trade deficit in the first period, domestic spending is more than GNP in the first period and country is borrowing from the rest of the world, and in the second period the country has to pay back the principal amount plus interest payment. So in the second period DS2 is less than GNP in second period. So standard of living is decreased during the second period due to the trade deficit in the first period. One thing, second thing you people should note that when DS1 our spending is more than GNP and we are running trade deficit, and when domestic spending is less than GNP and a country is repaying its loan, we say that country is running a trade surplus. सेकेंड पीरियड में जब आपकी डोमेस्टिक स्पेंडिंग आपकी जीएनपी से कम है लेकिन आपका जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कैपिटल आउटफ्लो करेगा, क्योंकि आप जो लोन आपने फर्स्ट पीरियड में लिया था वो आप सेकेंड पीरियड में रिपे कर रहे हैं. सो इन दैट केस जब आपके मनी आउटफ्लो करेगी तो ये ट्रेड सरप्लस में एंटर होगा आपकी डबल एंट्री बुक कीपिंग में जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बुक है उसमें. अब इसमें अगर आप ये एक्सप्लेन करें तो आप ये कहेंगे कि सेकेंड पीरियड में आप ट्रेड सरप्लस रन कर रहे हैं और फर्स्ट पीरियड में ट्रेड डेफिसिट रन कर रहे हैं. So when your domestic spending is less than when your GNP, you say that we are running a trade surplus. थर्ड सिचुएशन हम अज्यूम करते हैं, थर्ड केस पर जो सेकंड केस है जिसमें हमने ये अज्यूम किया कि इन द फर्स्ट पीरियड कंट्री इज रनिंग ट्रेड डेफिसिट, इन सेकंड पीरियड ट्रेड सरप्लस बिकॉज country is repaying its loan. It reflects that the if a country run large or persistent trade deficit, it highlights the fact that trade deficit which arise from international borrowing may require a reduced average standard of living for the country in the future when the loan must be repaid. एक और कंसर्न मतलब ट्रेड डेफिसिट को आप क्यों बुरा समझते हैं कि why it is considered as the weakness of an economy, because जिस पीरियड में ट्रेड डेफिसिट रन करता है उससे नेक्स्ट पीरियड में व्हेन यू हैव टू रीपे दैट अमाउंट इन दैट पीरियड योर लिविंग स्टैंडर्ड एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड रिड्यूस्ड. मेरे मैक्सिको की एग्जांपल दी हुई है 1970s और 80 की कि मैक्सिको ने बहुत ज़्यादा लोन लिया 1970s में इंटरनेशनल मार्केट से और 1980s में बाद जब हायर इंटरेस्ट रेट के साथ वो लोन आपने रीपे करना था. तो सजावल आप क्या कहना चाह रहे हैं? It reduced the living standard of the people of the country. Now it is important to note that current account deficits are not determinantal in the period in which the deficits are occurring. जिस टाइम पीरियड में करंट अकाउंट डेफिसिट आपका चल रहा होता है उस टाइम पीरियड में वो डिटर्मिनेंटल नहीं होता या उसकी इफेक्ट नजर नहीं आते. इन फैक्ट दिस करंट अकाउंट डेफिसिट करस्पॉन्ड टू हायर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेवल देन वुड बी पॉसिबल अंडर बैलेंस ट्रेड. कि जिस टाइम पीरियड में डेफिसिट चल रहा होगा उस टाइम पीरियड में लोगों की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, जिससे आपके लिविंग स्टैंडर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको स्टेट डेफिसिट के इफेक्ट नज़र नहीं आएंगे.
लेकिन जिस टाइम पीरियड में उस ट्रेड डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए आपने जो उधार लिया था, जो मनी बोरो की थी, जब आपने वो वापस करनी होगी तो असल में वो इफेक्ट तब नजर आएंगे। Instead, current account deficit pose a problem only when the debt repayment occurs, which is when the country is running current account surplus. वो आपके जो करंट अकाउंट होगा उसमें सरप्लस के तौर पे एंटर होगा। Trade deficit raise national welfare in the period in which they occur, while the trade surplus reduce welfare in the periods in which they occur. ये important point है जो हम अक्सर समझने में मिस्टेक करते हैं, इसको आप नोट करें। So trade deficit in this case need not to be problem in the long run if they are not too large. इसके अलावा ये कि ट्रेड डेफिसिट अगर बहुत बड़ा नहीं है और तो फिर ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप उसे किसी भी टाइम पीरियड में आराम से वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली इट मे क्रिएट प्रॉब्लम। अब हम एक थर्ड केस अज्यूम करते हैं। फर्स्ट केस में हमने क्या अज्यूम किया कि फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड नो ट्रेड डेफिसिट, नो ट्रेड सरप्लस, नो जीएनपी ग्रोथ। सेकंड केस में हमने क्या अज्यूम किया कि ट्रेड डेफिसिट इन फर्स्ट पीरियड and country has to repay that loan which it has borrowed in the first period, and GNP growth between the two periods. अब third case हम क्या, no GNP growth between two periods. So standard of living was lower in the second period and it was higher or it was more than GNP. Domestic spending was more than GNP in the first period. अब हम assume करते हैं केस 3, करंट अकाउंट डेफिसिट पीरियड 1। मतलब क्या हमारे assumptions हैं कि फर्स्ट अकाउंट जो पीरियड है उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट है। सेकेंड हमारा assumption क्या है कि पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ बिटवीन द पीरियड्स, कि एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड तक आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो पहले हमने क्या अज्यूम की थी कि कांस्टेंट है, उसमें कुछ भी नहीं, लेकिन अब पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ है, इट इज इंक्रीजिंग ओवर टाइम। In the third case, we assume in case 2 that the as in the case 2 that the country runs a trade deficit in the first period, that the trade deficit corresponds to the borrowing from the rest of the world, and that in the period 2 all the loans are repaid with interest, कि आपने जितने भी लोन लिए हैं वो इंटरेस्ट के साथ आपने सेकंड पीरियड में वापस कर देने हैं, और फर्स्ट पीरियड का आप में ट्रेड डेफिसिट है जिसको आप किस तरह से फाइनेंस कर रहे हैं, लोन लेके। But what differs here is that we will assume that GNP growth occur between the first and the second period. सेकंड केस से इस थर्ड केस में क्या बात डिफरेंट है कि हमने अज्यूम किया है कि जीएनपी ग्रोथ हो रही है फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड तक। इसमें we note that in first period domestic spending is more than GNP. This arises because a trade deficit implies that country is borrowing from the rest of world, allowing it to spend and consume more than it produces. ये जो आपकी डोमेस्टिक स्पेंडिंग है जो आपकी जीएनपी से ज़्यादा, ये जीएनपी 1 है, ये लाइट ब्लू कलर की लाइन से आपको शो कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे वंस अगेन पीरियड 1 पीरियड 2 हम टाइम ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे जीएनपी और डोमेस्टिक स्पेंडिंग हम ले रहे हैं। डोमेस्टिक स्पेंडिंग किस चीज़ के इक्वल है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जीएनपी 1 आपकी ब्लू लाइन है, ये डीएस 1 आपकी फर्स्ट पीरियड की स्पेंडिंग है, और ये जो डिफरेंस है इन दोनों में GNP 1 एंड DS 1 में, ये आपकी ट्रेड डेफिसिट को शो कर रहा है, और ये जो आपकी इम्पोर्ट्स आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, इनको फाइनेंस करने के लिए आपने लोन लिया है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अब हम आ जाते हैं सेकंड पीरियड की तरफ। इसमें क्या है कि आपकी GNP 1 ये थी फर्स्ट पीरियड में, लेकिन चूंकि हमने अज्यूम किया है कि इस टाइम पीरियड के दौरान कंट्री की जीएनपी ग्रो की है, और ये आपकी GNP 2 है सेकंड पीरियड में। अब आपकी जो सेकंड पीरियड में ये GNP 2 है, तो इसमें आपने क्या चीज़, ये जो लाइट ब्लू एरिया है ये क्या शो करता है, वो रेट वो लोन जो आपने ये जो ट्रेड डेफिसिट था और ये लोन आपने लेके फुलफिल किया था, फाइनेंस किया था, ये आपने रीपे करना। प्लस ये जो डार्क ब्लू या पर्पल सा कलर है, ये क्या है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन है जो आपने लिया था, आपने ये भी वापस करना। इन दोनों अमाउंट्स को अगर हम माइनस कर दें अपनी GNP 2 में से, तो पीछे ये बार शो करती है आपकी DS 2 डोमेस्टिक स्पेंडिंग इन द सेकेंड पीरियड। ये
फर्स्ट पीरियड की डोमेस्टिक स्पेंडिंग से कम है, लेकिन फर्स्ट पीरियड की जीएनपी से ज़्यादा है, क्योंकि सेकंड पीरियड की जीएनपी ज़्यादा थी, जो आपका फर्स्ट पीरियड का लोन और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने के बाद भी बच गई। सो in the second period, GNP has grown to GNP2 as shown in the graph. The principal and interest from the first period loans are repaid, which lowers the domestic spending to DS2. Note that since domestic spending is less than GNP2, the country must be running a trade surplus. First period में trade deficit था, second period में trade surplus. Also note that trade surplus implies that consumption and the average standard of living are reduced below the level that is obtainable with balance state in that period. अगर इस पीरियड में अगर बैलेंस स्टेट होती मीन ये सरप्लस ना होता, सरप्लस किस शक्ल में है कि आप लोन वापस पे कर रहे हैं, आपकी मनी आउटफ्लो हो रही है और सरप्लस की शक्ल में एंटर होती है आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड में, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो DS2 GNP2 के इक्वल होता है। अब इसके जो इफेक्ट्स हैं वो आपने देखे हैं, लेकिन इसमें एक सिनेरियो और भी है जो हमने पीछे डिस्कस नहीं किया था जब हमने जीएनपी ग्रोथ बिटवीन द पीरियड अज्यूम नहीं की थी। वो ये है कि इट इज़ पॉसिबल दैट द ट्रेड डेफिसिट फर्स्ट पीरियड डेफिसिट इन दिस केस में एक्चुअली बी जनरेटिंग अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, कि वो जो फर्स्ट पीरियड में आपकी इंपोर्ट ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट कम थी और ट्रेड डेफिसिट था, हो सकता है कि एक ऐसा ट्रेड डेफिसिट हो विच इज़ प्रोड्यूसिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। पर ये कैसे पॉसिबल है? सपोज फॉर अ मोमेंट दैट दिस कंट्रीज बैलेंस स्टेट आउटकम ओवर टू पीरियड विल लुक लाइक द बेस केस, कि अगर आप अज्यूम करें कि बैलेंस जैसे बेस केस था कि दोनों पीरियड के दरमियान ग्रोथ हुई ही नहीं थी, जीडीपी सेम ही रही थी और कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन इस टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो पीरियड में ट्रेड डेफिसिट है वो सेकंड पीरियड में तक पहुंचने तक जीडीपी ग्रोथ हुई है साथ। तो इसकी पॉसिबिलिटी साथ ये हो सकती है कि आपने इस टाइम पीरियड में जो लोन लिया था वो इन्वेस्टमेंट लोन था, या आपने जो भी डोमेस्टिक गुड्स इंपोर्ट की थी वो कंजम्पशन गुड नहीं थी, वो फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज थी, इंटरमीडिएट गुड थी। इन दैट सिचुएशन अगर आपने जो भी लोन लिया आपने से इन्वेस्ट कर दिया तो इट मे इंक्रीज द जीएनपी ऑफ द कंट्री। कैसे? कि borrow money from the rest of the world in period 1, thus running a current account deficit, and uses those funds to purchase investment goods, which may in turn stimulate GNP growth. If GNP rises sufficiently, the country will achieve a level of domestic spending that exceeds the level that would have been obtained in base case. तो बेस केस में यूं ही है कि आपने ना सरप्लस था ना डेफिसिट था और ना ही जीएनपी ग्रोथ थी। सेकंड केस को आप थोड़ी देर इग्नोर करें तो थर्ड केस में ये एक सिनेरियो गिवन है, एक पॉसिबिलिटी गिवन है कि आपने जो फर्स्ट टाइम पीरियड में लोन लिया वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट गुड्स थी और उन इन्वेस्टमेंट गुड्स को जब आपने यूज़ किया है, आपने जो फंड्स थे उन्होंने को आपने इन्वेस्ट किया है, तो फ्रॉम पीरियड 1 टू पीरियड 2 आपकी जीएनपी इतनी ग्रो कर गई है कि ना सिर्फ ये कि आपने ओरिजिनल जो लोन लिया था वो पे कर दिए, बल्कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड फिर भी पहले से इम्प्रूव है। This means that even though domestic spending rises, the average standard of the living would remain unchanged relative to the base case because investment goods generate no immediate consumption per year. हाँ, इसमें ये एक बात नोट करने की है कि ट्रेड डेफिसिट जिस पीरियड में रन कर रहा है उस पीरियड में अगर आपने जो भी गुड्स कंज्यूम किए हैं, इंपोर्ट किए हैं, वो सारी लग्जरी गुड्स हो या कंजम्पशन गुड्स हो, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करेगा। लेकिन अगर आपने जो भी ट्रेड डेफिसिट है, जो लोन लिया है, जो गुड्स इंपोर्ट किए हैं, आप कंट्री के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, इकोनॉमी की सेंस के लिए कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट गुड्स होंगी और इन्वेस्टमेंट गुड्स से फिर आपके फर्स्ट पीरियड में आपका डोमेस्टिक स्पेंडिंग तो हायर होगी लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गुड्स नो नॉट जनरेट immediate consumption per year. In period 2, the higher level of the domestic spending may be used for increased consumption that would cause an increase in the country's average living standard. Thus, the country is better off in both the short term and in the long term with the unbalanced state scenario compared to the balanced state. So, ये explanation थी इस चीज़ की कि sometimes state deficit or imbalanced state is better for the country than the balanced state. उसको दोबारा इवेल्युएट किया हुआ सारी सिचुएशन को। The lesson of case 3 is that trade deficit, even if large or persistent, will not cause long-term harm to a nation average standard of living
if the country grows rapidly enough. So rapid economic growth is often cure all the problems associated with the trade deficit. So solution क्या है कि आपकी GDP, GNP growth rate आपका फोकस होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, ना कि ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस, ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। हाँ, जीडीपी ग्रोथ रेट इंप्रूव करने के लिए या जीडीपी ग्रोथ अचीव करने के लिए आप अपना टारगेट ये रखते हैं कि यू विल एनहांस योर एक्सपोर्ट, तो भी ये एक टूल है कि यूजिंग ट्रेड एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ, लेकिन आपका टारगेट जीडीपी ग्रोथ रेट इज अ बेटर टारगेट देन द ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट। इस सारे चैप्टर में जो आपका जोर है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, वो किस चीज़ की है कि फौरी तौर पे ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस को देख के आप उसे किसी कंट्री की वीकनेस या स्ट्रेंथ नहीं कह सकते जब तक कि आप उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट को नहीं देखते, लिविंग स्टैंडर्ड को नहीं देखते, ये नहीं देखते कि जो इम्पोर्ट्स हैं या ट्रेड डेफिसिट है वो इन्वेस्टमेंट गुड्स की वजह से है, कंजम्पशन गुड्स की वजह से है, तो आप उसको कंट्री की वीकनेस या स्ट्रेंथ नहीं समझ सकते। In some cases, it is possible for growth to be induced by investment spending made possible by borrowing money in international markets. A trade deficit that arises in these circumstances could present economic salvation for a country rather than the sign of economic weakness. कि अगर एक कंट्री को ग्रोथ की ज़रूरत है, उसके लिए उसे इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग चाहिए जिसके लिए कंट्री बोरो करता है, तो उस इस तरह की सिचुएशन में जो भी बोरोड मनी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी, जो कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, इस सिचुएशन में ट्रेड डेफिसिट जो है उस कंट्री की इकोनॉमिक वीकनेस नहीं शो करता। इसमें लेस डेवलप कंट्रीज की एग्जांपल दी है कि बहुत से कंट्रीज जब विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में होते हैं, वो खुद से उनके पास इतने फंड नहीं होते कि वो अपनी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस कर सके और अपने कंट्री को वो दे वांट टू पुट इन देयर कंट्री ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ, जो कि डोमेस्टिकली पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए वो हेल्प लेते हैं, बोरो करते हैं, और फिर एक कंट्री जो है वो ग्रोथ के रास्ते पे चल पड़ता है। अब अगर एक कंट्री जो है वो किसी भी टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से बोरो करता है, तो उसका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें ऑब्वियसली ट्रेड डेफिसिट जो है ये शो होगा। इफ दीज borrowed funds are used for productive investment, which in turn stimulates sufficient GDP growth, then the country may be able to raise average living standard even after repaying the principal and the interest on international loans. Thus, trade deficit can be a good thing for less developed countries. कि अगर आप borrowed fund प्रॉपरली यूज करें और कंट्रीज को ग्रोथ के पाथ पे आप ले जाते हैं, और फिर आपका लिविंग स्टैंडर्ड ना सिर्फ ये कमिंग शॉर्ट रन में बल्कि इन द लॉन्ग रन इम्प्रूव कर जाता है, और आप अपना लोन भी पे कर देते हैं, इंटरेस्ट भी पे कर देते हैं, तो इन दैट सिचुएशन ट्रेड डेफिसिट इन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक अच्छी चीज़ है। इसमें एग्जांपल दी हुई है सोवियत ब्लॉक के ट्रांजिशन की, डिफरेंट कंट्रीज जब कोलैप्स कर रहे थे तो उन्होंने अपने कंट्रीज को, अपने इकोनॉमीज को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए कुछ टेली कम्युनिकेशन के और बाकी भी जो सेक्टर्स थे उन्हें इम्प्रूव करने के लिए लोन लिए, तो उसके बाद उन कंट्रीज की जो सी इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर हो गई। तो ट्रेड डेफिसिट दैट वुड अकर अंडर दिस सिनेरियो कुड बी जस्टिफाइड एंड अप्रोप्रिएट वे टू स्टिमुलेट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन यहाँ तक बात समझ आने के बाद आपने ये बात याद रखनी है कि हमने क्या कहा है कि पॉसिबिलिटी है कि ट्रेड डेफिसिट आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंड्यूस कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही ट्रेड डेफिसिट जो है, अगर किसी भी कंट्री का आप देखें कि ट्रेड डेफिसिट चल रहा है तो आप कहें नहीं नहीं ये कंट्री बहुत तरक्की करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप इवन इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए भी आप लोन लेते हैं, आपकी कंट्री में ट्रेड डेफिसिट शो हो रहा है, बट समटाइम इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन इनअप्रोप्रिएट इंडस्ट्रीज, sometimes external shocks cause once profitable industries to collapse, एंड समटाइम्स जो कि हमारे जैसे पुअर कंट्रीज का प्रॉब्लम होता है असल कि इंटरनेशनल फंड्स आर स्क्वेंडर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड यूज टू परचेज द लार्ज स्टेट्स एंड बिग कार्स। फिर इस पर्पज के लिए आपने लोन लिया है वो उसके लिए यूज ही नहीं होते, दे आर यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉर देयर पर्सनल पर्पजेज, एंड इन दैट केस जाहिर है कि आपकी जो कमिंग जनरेशन है या नेक्स्ट टाइम पीरियड है उसमें आपने वो रीपे करने हैं, और आपका परसिस्टेंट है लार्ज ट्रेड डेफिसिट जो है वो मौजूद रहेगा।
क्योंकि आपके रिफंड से किसी भी पॉजिटिव पर्पज के लिए यूज नहीं हुए। एंड एट द एंड वन मोर थिंग, that if a country running trade deficit could find itself with a favorable outcome even if it does not use borrowed international funds to raise domestic investment। कि यूएसए की एग्जांपल दी हुई है कि there are some situations that had when a country has a trade deficit and वो जो deficit में borrowed money है वो उन्होंने investment purpose के लिए भी नहीं यूज की, even then during that period they had a good GDP growth rate। और अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ अच्छी है तो आपके कंट्री में इकोनॉमी में वीकनेस नहीं है। एज लॉन्ग एज ग्रोथ प्रोसीड्स रैपिडली इनफ फॉर वट एवर रीजन इवन अ कंट्री विद परसिस्टेंट डेफिसिट कैन वाइंड अप विद अ बेनिफिशियल आउटकम। वंस अगेन पॉइंट टू नोट दैट अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट इज गुड then you not need to worry about the trade deficit। Example of USA। ये बच्चों थोड़ा सा कंसेप्चुअल है जो हमने पढ़ा है, इसमें अगर आप पिछला भी देख के आए हैं तो इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है टू अंडरस्टैंड।